हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा स्टूडेंट्स। तो आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी और वोकैब को हम डिस्कस करेंगे आज थोड़ा स्टोरी वाले मेथड से। ठीक है, तो स्टोरीज वाला जो मेथड होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जे तुसी किथे मान लो कहानी च किते तुसी स्टोरी च वर्ड ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਐਬਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਬਰੇਸ਼ਨ, ABERRATION। ਹੁਣ ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਬਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਬਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ठीक है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਜੂਅਲ ਚੇਂਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, मतलब डेली रूटीन 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, that is called aberration, right। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, that is called aberration। ਸੋ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ aberration होता है when you don't behave in your usual manner, right। so इसका हम मीनिंग लिख सकते हैं when you do not behave in your usual manner, that is called aberration, right। जैसे आप बोलोगे कि when I met him या when I met her, I found aberration, right। I found aberration in his behavior, मतलब I found sudden change, या तुसी क्या बोल सकते हो sudden change in behavior। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ aberration ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ abience, ABEYANCE। now abience is what? एबियंस दा मीनिंग की ਹੁੰਦਾ स्टूडेंट्स? एबियंस ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ कैंसिल करता, कुछ समय वास्ते तुसी अपने उस प्लान ਨੂੰ स्थगित करता, ठीक है, टू ड्रॉप एन आइडिया फॉर द टाइम बीइंग। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ एबियंस ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। एबियंस ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ टू ड्रॉप एन आइडिया, इट मींस टू ड्रॉप एन idea for the time being, right। to drop an idea for the time being, that is called abience। जैसे आप तुसी देते एग्जांपल किदा बना दो, तुसी बोल सकते हो कि earlier कि पहला earlier we decided to go to Shimla, earlier we decided to go to Uti, but later on our idea falls into abience, right। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। earlier we decided to go to Shimla but later on our idea falls into abeyance, राइट। तो बोल रहे हैं कि पहले जो है ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰ ਆਈਡੀਆ ਫਾਲਸ ਇਨਟੂ ਐਬੀਐਂਸ, ਰਾਈਟ। ਤੀਜਾ ਵਰਡ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ प्रिपरेशन ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ जैसे कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ प्रिपरेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਕ੍ਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਰੂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ cleared my exam right। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਕ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਰਨੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ I got through मतलब उस जो जर्नी है, वो जो रास्ता है, उसको रेफर करने के लिए हम थ्रू प्रेपोजिशन की हेल्प लेते हैं। तो अगर तुसी इदा बोलोगे आई गॉट थ्रू द एग्जाम राइट, या आई गॉट थ्रू द एग्जाम, हम गॉट की दी सेकंड फॉर्म होंदी है गेट दी राइट। तो गेट दी सेकंड फॉर्म गॉट होंदी है, तो तुसी बोल रहे हो आई गॉट थ्रू द एग्जाम, तो अल्टीमेटली तुसी ये बोल रहे हो आई क्लियर्ड द एग्जाम राइट। जे हुण इत्थे मान लो कामयाब हो गए, तुसी अचीव करता अपना गोल, कामयाब हो गए, तो आपां गॉट थ्रू मतलब पास करने नूं कहंदे हैं। जे तुसी सक्सेसफुल हो जांदे, अचीव कर लेंदे हो। जे तुसी इत्थे मान लो कोई बंदा है, सपोज तुसी सोचा कि आज यार मेरी तुसी कोई बिजनेस टाइकून हो, तुसी सोचा कि आज मेरी जेडी डील है वो फाइनल हो जाएगी, बट डील किसी कारण बस फाइनल नहीं हुई, वो फेल ही होगी राइट। तो इदा ही जेड़ा ऑपोजिट हुंदा गॉट थ्रू दा, उत्थे आपां यूज करदे फॉल थ्रू, ठीक है। तो तुसी कहंदे द डील फेल थ्रू, जे तुसी इदा बोलिए द डील फेल थ्रू राइट। जद आप इदा कहते ना द डील फेल थ्रू, तो मतलब इदा मतलब होया कि जी डील सीगी वो मतलब फेल होगी। तो गॉट थ्रू मतलब पास होना होता है, ठीक है, किसी चीज को अचीव करना होता है, ठीक है। होर बेसिकली फेल थ्रू इदा ऑपोजिट होता है, इदा मतलब फेल होना होता है, ठीक है। जब तुसी क्विकली किसी चीज को अचीव करते हो, तो उत्थे फिर गॉट थ्रू भी नहीं यूज करते, उत्थे आपां यूज करते सेल थ्रू राइट। सेल थ्रू भी एक फ्रेजल वर्ब हुंदी है, और सेल थ्रू फ्रेजल वर्ब दा मतलब हुंदा है टू अचीव समथिंग क्विकली। सेल थ्रू दा भी ध्यान रखियो, इदी सेकंड फॉर्म सेल्ड थ्रू हो जाती है, फिर वो सेल थ्रू दा मतलब हुंदा है टू अचीव समथिंग क्विकली। मैं अगली स्लाइड ते लिख लेंदा, ठीक है। सेल थ्रू, सेल थ्रू फ्रेजल वर्ब दा मीनिंग होता है जी टू अचीव समथिंग क्विकली, टू अचीव समथिंग क्विकली राइट। ये है जी इदा मीनिंग, ठीक है जी। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स दा भी तुसी थोड़ा जे सेशन लिया करो, ठीक है। सैशन तो फ्रेजल वर्ब्स दे उत्ते भी मैं दूंगा, ठीक है, जिद्दां आपां अज 2-3 फ्रेजेस कीतियां, ठीक है। हुण मैं अगली फ्रेज यूज कर रहे थे फॉल आउट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जी फॉल आउट, ध्यान रखियो। ये स्टेट दे पेपर च हिट होंदी रहंदी है फॉल आउट। हुण ये किसी पेपर च आया सीगा, रिसेंट ही कोई पेपर होया सी, ठीक है। तो उहदे च ये क्वेश्चन आया सीगा फॉल आउट। तो फॉल दी सेकंड फॉर्म की हुंदी है फेल आउट, थर्ड की हुंदी है फॉलन आउट। हुण मैं वो एग्जांपल तुहानूं लिख रहा थे, पेपर च की सवाल पूछा सी, कहंदा He has dash with the girl, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आया सी एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन ब्लैंक्स च नहीं दिता सी उन्होंने, क्वेश्चन दिता सी इंप्रूवमेंट का। हाँ जी, ही हैज इदा कहंदा फॉलन आउट इनू अंडरलाइन किया सी, he has fallen out with the girl he wanted to marry, he wanted to marry right। हुण ये स्टेटमेंट इदा पेपर चाहिए सी, he has fallen out with the girl he wanted to marry। हुण इत्थे थल्ले वो ऑप्शनां किद्दां दित्तियां सी, कहंदा फॉलन फॉर होएगा, मतलब उस अंडरलाइन पार्ट दी थां ते उत्थे फॉलन आउट गलत है, फॉलन फॉर आऊगा। बी कहंदा
फॉलन इन लव आएगा, राइट। सी कहंदा फॉलन आउट तो उत्ते हो गया, फॉलन ऑफ सी वाला ओ डबल एफ, फॉलन ओ डबल एफ ऑफ होगा, या डी कहंदा नो इंप्रूवमेंट होगा, नो इंप्रूवमेंट। इदा पूछा सी जी क्वेश्चन, ठीक है जी। तो कहंदा ही हैज फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी, ठीक है। तो हुण इत्थे कई बच्चे क्या इत्थे मैं कई इदा सॉल्यूशन कई यूट्यूब ते भी देखा, ठीक है। तो उत्थे टीचर भी इदा आंसर गलती दसी जांदे, ठीक है जी। तो इदा आंसर दसदे कई बोलदे कि सी होएगा जी। मतलब ही हैज फॉलन इन लव विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी, मतलब जिस कुड़ी नाल ओदा ब्याह होना है ओदे प्यार च पै गया हो। अरे गलत है, ये ना करियो कदे कदे भी आंसर इत्थे फॉलन इन लव ना करियो स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली फॉलन इन लव थोड़ी होएगा इत्थे, फॉलन आउट एक फ्रेजल वर्ब है, और फॉलन आउट दा मतलब हुंदा आर्गूमेंट हो जाना, झगड़ा हो गया ओदा, ठीक है। तो फॉलन आउट एक फ्रेजल वर्ब है, राइट आंसर इदा सीगा डी, ठीक है। नो इंप्रूवमेंट आंसर होएगा स्टूडेंट, फॉलन आउट दा मतलब टू आर्ग्यू, मतलब उसका झगड़ा हो गया, क्वारल हो गया उसका, ठीक है। क्वारलिंग होगी, क्वारल। जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उसके साथ उसका आर्गुमेंट हो गया, उसके साथ उसका झगड़ा हो गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉलन आउट, ध्यान रखना। फॉल आउट, फेल आउट और फॉलन आउट इसका थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। हैज के साथ परफेक्ट टेंस में लिख रहा है तभी वहां पे आपको क्या दे रहा है, फॉलन आउट दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नो इंप्रूवमेंट था इसका आंसर, ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन आया पेपर में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला वर्ड जो भी नंबर चल रहा है हमारा, ठीक है। तो एनकॉम्प्लाइस, ए डबल सी ओ एम पी एल आई सी, कंप्लाइस। कंप्लाइस हुंदा है ते एक तुहाडा पेयर फिर अकॉम्प्लिश भी हुंदा है, ए डबल सी ओ एम पी एल आई एस एच। कुछ क्वेश्चन ना इदां दे भी आ जांदे स्टेट दे पेपरां च कई बार जोड़िया दे उत्ते, जिद्दां हुण एक वर्ड ए भी हुंदा है डिफाई, डी ई एफ वाई, ते एक वर्ड फिर ये भी हुंदा है डी ई आई एफ वाई। तो कुछ पेयर इदा दे भी तुहानू पता होने चाहिए कि हाँ यार कुछ इदा दे कंफ्यूजिंग पेयर हुंदे हैं, जिद्दां एक एनश्योर हुंदा, एक इनश्योर हुंदा, एक आई एन तो बनदा है, एक ई एन तो बनदा है। एनश्योर टू मेक श्योर हुंदा है, ते इंश्योरेंस तो जिद्दां आपां इंश्योरेंस करांदे तो उत्थे इंश्योर उत्थों बनदा है आई एन, राइट। तो ये ध्यान रखियो, अकॉम्प्लाइज दा मतलब हुंदा एल आई सी ई दा मतलब पार्टनर इन क्राइम हुंदा, पार्टनर इन क्राइम। What is the meaning of accomplice? Partner in crime, right? और accomplish ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਕਰਨਾ, ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ accomplish ਕਰਨਾ, right? ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ठीक है जी। कंप्लीट, अचीव, डिफाई, डिफाई ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਡਿਸਓਬੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ डिफाई। एक्चुअली किसी ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिसओबे कर रहे हो, कोई बोल रहा है कि हाँ भाई सवेरे जल्दी उठा करो, ठीक है, लेट ना उठा करो, तो ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ नहीं हो, डिसओबे कर दो, किसी ਦਾ पालन नहीं करना, डिफाई। चैलेंज करना किसी ਨੂੰ, टू चैलेंज, ठीक है, चैलेंज करना या डिसओबे करना, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ बेसिकली डिफाई, राइट। तो ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ स्टूडेंट्स ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ, पूजा पाठ करना। तो टू वर्शिप, डिफाई, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ टू वर्शिप, राइट। तो ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਕੁਝ ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਕਰਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗॉट थ्रू, सेल थ्रू, फेल थ्रू ਤੇ फॉलन आउट, 4 फ्रेजेस कराई ਤੇ थोड़े ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ वोकैबुलरी ਦੇ वर्ड्स दसते, एबरेशन हो गया, एबियंस हो गया ਤੇ 3-4 ये हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करया करो, ठीक है, वोकैबुलरी, क्योंकि पंजाब के पेपर सिमिलर ऑपोजिट आते रहते हैं जी। और ये फ्रेजल वर्ब फॉलन आउट एक हाल ही किसी पेपर च पूछी गई थी। तो अज के सैशन इन्ना रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।